ओके, तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, इसके नीचे विक है, ठीक है। Due to space issue, recording got stopped, so I restarted it. So I'll be uploading this video in two parts. There are three pushes, you can see: first push, second push, then third push. It's a triangle, okay, and we may consider this like first, this is first leg pullback and second leg, and target would be the start of the sell climax. So this is our first target. We can hold the position if market strongly breaks above the climax, but since we can see here it is taking resistance, so if you are buying here, then this will be your first target. And if you see the reversal and market is going below this candle, and since that candle is closed at its low, you can exit your remaining 50% position. As the market is going sideways here, and you can see if market has to rally, then we should not be seeing strong bear bars, even though these two strong bear bars close on its low. Still those two bear bars are not closed far below 20 EMA, and that's the reason market is right now sustaining above the EMA. So we should it would not be a wise decision to sell below these bear bars. Since market is not going below this bear bar, your sell will not get triggered, but here there is a candle which is closing below this bear bar, and this bear bar is closed on its low, even though there is a wick, but this is not a doji bar, since this bar has some body. If you compare this bar, body of this bar and body of this bar, then you can see that this is a trending bar, this is not a doji bar. I will consider this as a doji bar, since market more than 50% market moved up and down. Now if market has to rally, then it has to sustain above this EMA, and it should create one decent buy signal bar. So we need to wait for a clear pattern, and here if market has to test this low, let's say market is in trading range, you can see here pullbacks are not that much big, only one bar, two bar. So even if this looks like a bull leg in a trading range, we might expect that there might be a bear leg in a trading range, but to have a bear leg in a trading range, there has to be a clear sell off pattern. But as you see here, market sustaining, there are strong trending bull bars, and that's the reason we may not expect immediate sell off. And even if there has to be immediate sell off, then there should be consecutive bear bars closing below EMA, then there has to be a pullback, and it should take resistance from the 20 EMA. But right now market is sustaining above EMA, so you can wait. Then there is a triangle pattern. See, triangles are never perfect, so you just need 5 pushes or 5 points to draw the triangle. This first point, second point, then third point. So this first point we can consider market moved up, down. So this is first push, down, second push, down, third push, down. So this is first 2, 1, 2, 3, 4, 5. Then you can buy above this bull bar, which is closing at its high. See, sometimes even if bar has let's say bar's body is
less than the average bars on the chart, then we may consider that bar as doji bar as well. So we have to be flexible with our definition of doji bar and trending bars. So I'll buy here about this bull bar. My first target would be, say this is disappointment, so my first target would be high of the triangle, and since market has not strongly broken above the climax, so you can expect that this would be the first target. See, if market is in trading range, then as we know, if it breaks above the previous high or previous low, it reverses. So here market broke above previous high and it reversed. Here market broke above previous high and it reversed, and this is expected. This is trading range price action. So if I have to sell, then I would sell below these bars. I'll expect at least market to test this low, and sometimes if we get lucky, then it will be testing this low. Why I am saying lucky? Because after seeing this price action, I am expecting that market would sustain above EMA, but you can see sell off is strong. So that's the reason this is reasonable sell, but there is only one way to enter this trade, and that is SL. So you have to keep SL order here. ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर सेल लेना है, तो जैसा मैंने बताया कि आपको ये सेल ऑर्डर लगा के रखना होगा ये बार के नीचे, और पहला टारगेट हमारे लिए ये लो हो सकता है. ऑलरेडी तो हमें यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिलते हैं. फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो. 50 पॉइंट्स इसलिए हमें बुक करना है क्योंकि रैली स्ट्रांग आई थी, तो बस यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है, तो हमें पूरा प्रॉफिट गिव अप नहीं करना है. आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो. फिर यहाँ तक हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं. क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, अभी अगर मैं इमीडिएट बार देखता हूँ तो इमीडिएट स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, तो यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है. भले इनसाइड बार है, पर ये प्राइस एक्शन देख के हमें एक्सपेक्ट ऐसा नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकता है. उसके चांसेस बहुत कम हैं. तो बेटर ये है कि, और EMA बहुत नज़दीक है, तो बेटर ये है कि हम कोई क्लियर पैटर्न के लिए वेट करें. तो यहाँ पे फिर हमारा जो सेल है वो ये बार के ऊपर बन रहा है यहाँ पे. तो जैसा मैंने बताया, फिर हमारा जो एग्जिट था ये बार के पास था. यहाँ पे अगर इनसाइड बार बन रहा है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं इसे ट्रेड करने के. तो हम यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं, जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है वैसे ही. तो यहाँ पे भी अराउंड 70-80 पॉइंट्स मिलते हैं, और हम ये बार के ऊपर यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं. तो ये EMA तक हमारे लिए एक टारगेट होता. क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो अगर आप मान लीजिए सेल भी करते हो, तब भी आपको फिर यहाँ पे फिर फॉलोअप देख के एग्जिट करना होगा. नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं. हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? ये क्लाइमैक्स हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है. यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिलते हैं. देखिए, आप रेगुलरली इतने पॉइंट्स को अगर कैप्चर करते हो तो बहुत है.
तो यहाँ पे जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है हम बाय कर सकते हैं टू 86 टू यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 100 पॉइंट्स मिलते हैं। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए, अगर ये मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो हाँ, मार्केट जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो ऐसे ही प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे भले ही बुल बार्स हैं, पी में बियर बार्स एक्सपेक्टेड हैं, तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है आप यहाँ पे कहीं पे अपना एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हो। ये हमारे लिए एक टारगेट था 2110 यहाँ पे आप या तो कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो या फिर आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करके रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। तो 200 टू ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो भी हमारे रीजनेबल ट्रेड्स थे, ये फर्स्ट ट्रेड था, फिर यहाँ पे हमें कहीं पे इसको निकालना था, इसके ऊपर एग्ज़िट करना मस्ट था, इसके ऊपर भी हम एग्ज़िट कर सकते थे, पर जबकि टाइट ट्रेडिंग रेंज में है तो चांस है कि और एक लेग आए, उसके बाद फिर कुछ बाइंग आए। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेल था, इसके ऊपर एक बाय था, 2 लेग्स अप थे, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। यहाँ 50% क्वांटिटी आप बुक कर सकते थे और जैसे रिवर्सल होता है रिमेनिंग क्वांटिटी हमें एग्जिट करनी थी, फिर यहाँ पे बाय करना था, फिर ये एक हमारे लिए टारगेट था। जैसे पता है हमें कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो जो भी हाई बनेगा वो रिवर्स होने के चांसेस हैं, वैसे ही होता है। नेक्स्ट हमारा सेल ये बार के नीचे होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे इसमें बहुत वॉलेटिलिटी है, जैसा हमने निफ्टी बैंक में देखा था। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें एंटर नहीं करना है, नीचे वीक्स बन रहे हैं, तो बेटर ये है कि हम वेट करें। तो नेक्स्ट हमारा जो सेल था वो यहाँ पे था, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट है क्योंकि यहाँ से रैली हुई थी, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। फिर हमें देखना है कि क्या मार्केट स्ट्रांगली इसके ऊपर ब्रेक करता है, अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक वेज बनता है, वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक रीजनेबल बाय हो सकता है। ये टारगेट के लिए एटलीस्ट 2 लेग्स वी कैन एक्सपेक्ट। सो दिस फर्स्ट लेग, पुल बैक सेकंड लेग। अगर मार्केट को रैली करना हो तो ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है, ईएमए के नीचे अगर जा रहा है, ऐसे क्लोज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। या फिर ये जो जैसे मैंने बताया टारगेट है, यहाँ से रिवर्सल आने लगता है, आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्या? तो ये प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पुल बैक्स बहुत वीक है, बस ईएमए के नीचे मार्केट जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है। तो यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है, अदरवाइज़ हम ये ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है। पर आई हेजिटेट टू सेल हियर। फिर नेक्स्ट क्या हम इस यहाँ पे बाय कर सकते हैं? मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है, तो ये हम EMTR के लिए बाय कर सकते हैं। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, एटलीस्ट 2 लेग्स वी कैन एक्सपेक्ट, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जैसा मैं बोलता रहता हूँ कि मार्केट अगर नीचे जाना होता तो EMA से नीचे अगर क्लोज भी करता है तब भी कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स कॉन्जिक्यूटिव बियर क्लोजेस होते हैं, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, जब भी ऐसा लगता है ना कि दिस समथिंग इज़ वेरी ऑब्वियस, आप ऐसा मान लीजिए कि वैसा नहीं होगा। तो अगर आप इसके ऊपर बाय भी करते हो ना, तो जैसे ही रिवर्सल आने लगता है, ये बार के नीचे जाने लगता है, आपको एग्जिट करना होगा क्योंकि अब यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट ये फेल हो रहा है। वेज है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट के लिए हमें और एक ब्रेकआउट पॉइंट चाहिए और एक फॉलो बार चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिला है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ ये रैली में हम पूरा होल्ड कर सकते हैं। बार्स आर क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से रैली हो, ऐसा हो सकता है। पर हमें जैसे अभी पता, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए हैं, तो हो सकता है इसके ऊपर भी ब्रेकआउट फेल हो और यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए।
तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे था, तो हमारे जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक बाय था, फिर नेक्स्ट बाय हमारा हम ये बाय ले सकते थे, फिर और एक बाय ये था, यहाँ पे बाय लेना काफ़ी रिस्की था, और फिर नेक्स्ट सेल ये था। अब हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाय था, तो आप यहाँ पे प्रीवियस जो भी हमारा हाई था इसके पास यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे। फिर रिमेनिंग आप ये बार के ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम बाय भी ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे एक टारगेट था, फिर नेक्स्ट ऐसे जब बार्स बनने लगते हैं तो आप इमीडिएटली फिर एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे बुल बार है, यहाँ पे बियर बार है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस है। फिर जो नेक्स्ट बाय था ये बाय हम ले सकते थे। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर बैड फॉलोअप है, ऐसे बार्स बन रहे हैं तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपको इमीडिएटली रिवर्सल पे एग्जिट करना होगा। नेक्स्ट बाय ये बार के ऊपर था, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो रिवर्सल पे आप यहाँ पे कहीं पे इसको ये एग्जिट कर सकते हो। 152, तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो सेल था वो बाय था। देखिए ये एक रीज़नेबल सेल हो सकता है, क्योंकि अगर आप बार देखते हो तो एक डिसेंट यहाँ पे पी में, भले ये बुल बॉडी है पर यहाँ पे पी में बियर बॉडी होनी चाहिए थी जबकि बुल बॉडी है, तो ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग बियर्स हैं, इसलिए आप इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर हम ऑप्शन के प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो आपको 50% प्रॉफिट होता। सो दैट्स ऑल वी हैव, बाय।